Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our 7th chapter, Human Occupation, Major Types. Our today's topic is Secondary Occupation. In my previous video, I discussed about the differentiative areas and differentiative kind of primary occupation. And we know that primary occupation is raw material obtaining occupation. So now, in this topic secondary occupation, we are going to find out the different type of secondary occupation and why and how this secondary occupation is beneficial for us. We entirely discuss in this topic. So students, in secondary occupation, naturally available resources are not utilized like in primary occupation. Instead, they are refined and modified into more useful and valuable commodities. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जो भी नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जाता, बल्कि इनको क्या किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, इनको प्रोसेस किया जाता है, इनको रिफाइन किया जाता है और इनको कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूएबल कमोडिटीज में और यूजेबल आइटम्स में. एंड दैट इज such human activities which refine or transform naturally available resources into utility suitable commodities by refining or transforming them without directly consuming them. These are called secondary occupation. So students, secondary occupation include manufacturing, processing and activities of production. For instance, steel from iron ore, flour from wheat, cotton textile from cotton, sugar from sugarcane, furniture from paperwood. These entire things are happened in the secondary occupation. Let us differentiate them. What kind of occupation involved in the secondary occupation? Industries, food processing, construction, dairy industries and specialized industries are included in this. You know that these industrial production getting the high amount of GDP. In some of the country, the major GDP receives by the secondary sector occupation and basically from the industrial production. Students, both the natural and cultural resources lay down effect on determining secondary occupation. Secondary occupation कहाँ start करें, इस पर natural और cultural resource दोनों इस पर depend करते हैं. So these are some of the factors which determine them. And these factors are raw material, energy resources, facilities of transport and communication, capital, market, government policies, labor and टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एस्टेब्लिश किया जाता है. रॉ मटेरियल कहाँ इजीली अवेलेबल है, सस्ते दामों पे कहाँ मिलेगा, एनर्जी चीपेस्ट फॉर्म में कहाँ मिलेगी, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन की कैसी होगी, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग यूनिट तक और प्रोसेस मटेरियल मार्केट तक इजीली पहुंचाने के लिए कैपिटल चाहिए, मार्केट नियर बाय होना चाहिए ताकि कंजप्शन हो सके, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो इनके लिए बेनिफिशियल हो, लेबर इजीली अवेलेबल होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए. तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को वैल्यूएबल बनाती हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस मूव टू द टर्शियरी ऑक्यूपेशन. Students, earlier I discussed you that I already told you that tertiary occupation is also called service sector occupation. Some of the personal, commercial, direct services to the communities are included in this occupation. So it is well known as service sector, and most of the tertiary occupation are executed by skilled labor, professionally trained specialists and consultant. टर्शरी सेक्टर में ज्यादातर उन वर्क को शामिल किया जाता है जो सर्विसेज होती हैं. आज बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी है ताकि ह्यूमन डेवलप हो सके और कंट्री डेवलप हो सके. तो इसमें ज्यादातर हम किन लोगों को शामिल करते हैं? जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड इन इट? लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, कम्युनिकेशन, services like banking, insurance, tourism. These all kind of activity included in the tertiary sector. Students, these are determined by the cultural level.
ये सर्विस सेक्टर जो है कल्चरल लेवल और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी जो है उनकी मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स कहाँ एंगेज है? टर्शरी ऑक्यूपेशन में। तो टर्शरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इन बोथ द एरियाज। प्रोडक्शन इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस यूज्ड, रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज। जब कोई सर्विस अपनी देता है तो उसको रेम्यूनरेशन मिलता है। एंड वी ऑब्जर्व दैट इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज टेक प्लेस इन टर्शरी एक्टिविटी। यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि यहाँ पे सर्विसेज का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, शॉपकीपर, डॉक्टर, लॉयर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं और इनके बदले में हमें उन्हें रेम्यूनरेशन देना होता है। इलेक्ट्रीशियन कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान नहीं बनाता, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको कहीं पावर कट है, कहीं कोई बिजली के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उनको सही करता है। प्लम्बर आपके घर में नल फिटिंग और ऐसे ही कामों को देखता है। लॉयर आपको लीगली हेल्प करता है। तो ये सब क्या करें? दे ऑल प्रोवाइड सम ऑफ द फैसिलिटीज रिलेटेड टू द सर्विसेज, राइट? हियर table given. The tertiary occupation involve transportation like road, rail, water, air. ट्रेड कॉमर्स में होलसेल, रिटेल को शामिल किया जाता है। कम्युनिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन को हम शामिल कर रहे हैं। और सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंडिविजुअल, कमर्शियल, इन सबको हम लोग शामिल करते हैं। लाइक होप यू अंडरस्टैंड द टर्शरी ऑक्यूपेशन एज वेल। अब टर्शरी ऑक्यूपेशन जिसे हम लोगों ने सर्विस सेक्टर कहा है, इसको और थोड़ा सा एनहांस करते हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं बेटा जिनमें इनडायरेक्ट सर्विसेज होती हैं। तो हम आसान से शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर को ही एडवांस फॉर्म में हमने तो और फर्दर क्लासिफिकेशन कर लिया है और इनको कहा है क्वाटनरी ऑक्यूपेशन और क्वीनरी ऑक्यूपेशन। सबसे पहले क्वाटनरी ऑक्यूपेशन का आइडिया जीन गॉटमैन ने इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने इनडायरेक्ट सर्विसेज को इनमें कैटेगराइज किया था। So more than half of the workers in developed economies are working in this field of knowledge. जो सबसे नॉलेजेबल लोग होते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। और आपको पता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में हाफ से भी ज्यादा परसेंटेज ऐसे ही लोगों की मिलती है। कौन से लोग इनमें शामिल होते हैं? ऐसे लोग जो इंफॉर्मेशन बेस्ड, रिसर्च डेवलपमेंट बेस्ड सर्विसेज करते हैं, जो ऑफिस में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हाई पोस्ट पर वर्क करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में सर्जन्स होते हैं, थिएटर्स में काम करने वाले कलाकार होते हैं, अकाउंटेंसी जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं। हम ऐसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो इनका नॉलेज जो है वो अदर सर्विसेज के मुकाबले थोड़ा हाई होता है। ये ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ज़्यादा डेवलप होते हैं। भाई क्वीनरी ऑक्यूपेशन में अब किसको शामिल करें? भाई लगभग सभी लोग हो गए हैं। तो क्वीनरी सर्विसेज में उन लोगों पर फोकस किया जाता है जो न्यू आइडियाज क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन करने की क्षमता रखते हैं अपने स्किल से। खुद जाकर के रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते, बल्कि ऐसा डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह। और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स, राइट? हमने लॉयर्स को अगर रखा क्वाटनरी में, तो हम मजिस्ट्रेट और जज को रखेंगे क्वीनरी में। अगर हमने फिल्म के हीरो को रखा क्वाटनरी में, तो हम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को किसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे? क्वीनरी ऑक्यूपेशन में। अगर हम लोग मेंबर जो होते हैं एक बिजनेस में, एक मालिक होता है और मालिक से नीचे वाला जो स्टेज होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, सीईओ जिसे कहते हैं, इन सबको अगर हमने उसमें रखा, तो बिजनेस का जो होल्डर होता है, मेन बिजनेसमैन, उसको हम रखेंगे क्वीनरी में। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस
between these kind of services, between tertiary, quaternary and quinary occupation. Right? Nowadays, if we are talking about the ancient civilization, the primary occupation involvement is nearly 65, whereas the transition period taking 40 and then tertiary 10 only. Transition period means secondary sector. बदलाव जो हुआ है ट्रांजिशन पीरियड वो मिडिल एज, एंशियंट के बाद वाला और मॉडर्न एज से पहले वाला, जहां एंशियंट टाइम में ज्यादातर पॉपुलेशन परसेंटेज प्राइमरी में इन्वॉल्व था, वहीं ट्रांजिशन पीरियड में ये कम होकर के 40% हो गया और टर्शरी में तो इन्वॉल्वमेंट 10% रह गया। सेकेंडरी सेक्टर में 20, फिर बढ़ के 40 और फिर वापस 20। टर्शरी सेक्टर में ये इन्वॉल्वमेंट 15, 20 और 70 का रहा, 100, 100 and 100. Right? So this figure shows the involvement, workers' involvement in various occupations. Hope you guys understand the entire chapter well. Thank you and have a nice day.